गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का लेसन 4 जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट्स एट स्कूल। तो बच्चों हम पहले इस लेसन की रीडिंग करेंगे, साथ साथ आप भी रीडिंग करिए। लेसन खोल लीजिए, पृष्ठ संख्या 19 है। आपका लेसन है आई हैव ऑलरेडी सेड दैट आई वॉज लर्निंग एट द हाई स्कूल व्हेन आई वॉज मैरिड। We three brothers were learning at the same school. The eldest brother was in much higher class, and the brother who was married at the same time as I was, only one class ahead of me. Marriage resulted in both of us wasting a year. Indeed, the result was even worse for my brother, for he gave up studies altogether. Heaven knows how many youths are in the same plights as he. Only in our modern Hindu society do studies and marriage go thus hand in hand. My own reflection is that I had not any high regard for my ability. I used to be astonished whenever I won prizes and scholarships, but I very jealously guarded my character. The least little blemish drew tears from my eyes. When I was merited or seemed to the teacher to merit a rebuke, it was unbearable for me. I remember having once received corporal punishment. I did not much mind the punishment. I wept piteously. I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my defect. I wept piteously. That was when I was in the first or second standard. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Dorabji Adalji Jimmy was the headmaster then. He was popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method, and a good teacher. He had made gymnastics and cricket compulsory for the boys of the upper standards. I disliked both. I never took part in any exercise, cricket or football, before they were made compulsory. My shyness was one of the reasons for this aloofness, which I now see was wrong. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Today I know that the physical training should have as much place in the curriculum as mental training. I may mention, however, that I was none the worse for abstaining from exercise. That was because I had read in the books about the benefits of long walks in the open air, and having liked the advice, I had formed a habit of taking walks which had still remained with me. These walks gave me a fairly hardy constitution. The reason for my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as nurse to my father. As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. Compulsory exercise came directly in the way of this service. I requested Mr. Jimmy to accept me from gymnastics so that I might be free to serve my father. But he would not listen to me. Now it so happened that one Saturday, when we had school in the morning, I had to go from home to the school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. I had no watch, and the clouds deceived me.
Before I reached the school, the boys had all left. The next day, Mr. Jimmy, examining the roll, found me marked absent. Being asked the reason for absence, I told him what happened. He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas. I cannot now recall how much. I was convicted of lying. That deeply pained me. How was I to prove my innocence? There was no way. I cried in deep anguish. I saw that a man of truth must also be a man of care. This was the first and the last instance of my carelessness in school. But though I was none the worse for having neglected exercise, I am still paying the penalty for another neglect. I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa. I was ashamed of myself and repented of my neglect. I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. I tried later to improve mine, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth. Let every young man and woman be warned by my example, and understand that good handwriting is a necessary part of education. I am now of the opinion that children should first be taught the art of drawing before learning how to write. Let the child learn his first letters by observation, as he does different objects such as flowers, birds, etc. And let him learn handwriting only after he was learnt to draw objects. He will then write a beautifully formed hand. I had lost 1 year because of my marriage, and the teacher wanted me to make good the loss by skipping a class, a privilege usually allowed to the industrious boys. I therefore had only 6 months in the 3rd standard and was promoted to the 4th after the examination, which are followed by summer vacation. English became the medium of instruction in most subjects from the 4th standard. I found myself completely at sea. Geometry was a new subject in which I was not particularly strong, and the English medium made it still more difficult for me. The teacher taught the subject very well, but I could not follow him. Often I would lose heart and think of going to the 3rd standard, feeling that the packing of 2 years' studies into a single year was too ambitious. But this would discredit not only me but also the teacher, because, counting on my industry, he had recommended my promotion. So the fear of the double discredit kept me at my post. When, however, with much effort I reached the 13th position of athlete, the utter simplicity of the objects was suddenly revealed to me. A subject which only required a pure and simple use of one's reasoning power could not be difficult. Ever since that time, geometry has been both easy and interesting for me.
इसके बाद बच्चों आप लोग अर्थ देखिए। सबसे पहले आप लेसन का नाम जानिए। एक्सपेरिमेंट्स होता है अनुभव, एट स्कूल विद्यालय का अनुभव। तो इसमें गांधी जी ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बातें की हैं कि किस तरह उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें किस किस दौर से गुजरना पड़ा और उन्हें किस किस चीज़ का अनुभव हुआ। तो हम अर्थ पढ़ेंगे, आप लोग अर्थ देखेंगे। आई हैव ऑलरेडी सेड, मैं पहले ही कह चुका हूँ, दैट आई वॉज लर्निंग एट द हाई स्कूल, कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। व्हेन आई वॉज मैरिड, जब मेरी शादी हुई। वी 3 ब्रदर्स, हम तीनों भाई, वर लर्निंग एट द सेम स्कूल, एक ही विद्यालय में पढ़ रहे थे। हम लोग 3 भाई थे, यानी गांधी जी के 3 भाई थे और वे तीनों एक ही विद्यालय में पढ़ रहे थे। द एल्डेस्ट ब्रदर वाज इन अ मच हायर क्लास, एल्डेस्ट ब्रदर यानी बड़े भाई, मच हायर अधिक ऊंची क्लास कक्षा में थे, बड़े भाई अधिक ऊंची कक्षा में थे। एंड द ब्रदर हु वाज मैरिड एट द सेम टाइम एज आई वाज, और वह भाई जिसकी शादी उस समय हुई थी जब मेरी हुई थी, यानी दोनों भाइयों की शादी साथ में हुई थी। ओनली 1 क्लास अहेड ऑफ मी, अहेड मीन्स होता है आगे, वह केवल मुझसे 1 कक्षा आगे थे। मैरिज रिजल्टेड इन बोथ ऑफ अस वेस्टिंग अ ईयर, मैरिज रिजल्टेड शादी का परिणाम, इन बोथ ऑफ अस हम दोनों के लिए, वेस्टिंग बर्बाद हुआ, ए ईयर 1 वर्ष, शादी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का 1 वर्ष बर्बाद हो गया। इंडीड द रिजल्ट वाज इवन वर्स, इंडीड वास्तव में, द रिजल्ट वाज इवन वर्स परिणाम और भी बुरा हुआ, फॉर माई ब्रदर मेरे भाई का, फॉर ही गेव अप स्टडीज़ ऑल टुगेदर क्योंकि उसने पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ दी। इसका परिणाम और भी बुरा हुआ जब मेरे भाई ने पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिया। हेवन नोज, ईश्वर जानता है, खुदा जानता है, हाउ मेनी यूथ, कितने युवा, आर इन द सेम प्लाइट, इसी दुर्दशा में हैं, एज ही, जैसा कि वह थे। अपने भाई का उदाहरण दे के कह रहे हैं कि ईश्वर जानता है कि उनकी तरह कितने युवा इस दुर्दशा में पड़े। ओनली इन आवर प्रेजेंट हिंदू सोसाइटी, केवल हमारे आधुनिक, प्रेजेंट आधुनिक हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज में, केवल आज हमारे हिंदू समाज में, डू स्टडीज़ एंड मैरिज, शिक्षा एंड मैरिज और शादी साथ साथ होती हैं, हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ होती हैं। केवल आज हमारे हिंदू समाज में शिक्षा और शादी साथ साथ होते हैं। माई ओन रिफ्लेक्शन इज़ दैट, मेरा अपना विचार था कि आई हैड नॉट एनी हाई रिगार्ड फॉर माई एबिलिटी, रिगार्ड मीन्स होता है महत्व, फॉर माई एबिलिटी अपनी योग्यता का। माई ओन रिफ्लेक्शन इज़ दैट आई हैड नो एनी हाई रिगार्ड फॉर माई एबिलिटी, मेरा अपना विचार है कि मेरी योग्यता का कोई उच्च सम्मान नहीं था। आई यूज टू बी एस्टोनिश्ड, मैं चकित हो जाया करता था, वेन एवर जब कभी, आई ओन प्राइजेस, मैं पुरस्कार जीतता, एंड स्कॉलरशिप्स और छात्रवृत्ति पाता। गांधी जी कह रहे हैं कि जब कभी मुझे पुरस्कार मिलता या छात्रवृत्ति मिलती तो मैं चकित हो जाया करता था। बट आई वेरी जीलसी, लेकिन मैंने बहुत ही जीलसी में सतर्कता से, गार्डेड रक्षा की, माई कैरेक्टर अपने चरित्र की, लेकिन मैंने बहुत ही सतर्कता से अपने चरित्र की रक्षा की। द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश, द लीस्ट कम से कम, लिटिल ब्लेमिश छोटा सा दाग, ड्रू टीयर्स आंसू ला देता था, फ्रॉम माई आइज मेरी आँखों से कम छोटा सा दाग भी, बदनामी का दाग भी मेरी आँखों में आंसू ला देता था, या मेरे बदनामी के दाग से मेरे आँखों में आंसू आ जाया करते थे। व्हेन आई मेरिटेड, जब मुझे उपलब्धि मिलती, और सीम्ड टू द टीचर टू मेरिट, या ऐसा प्रतीत होता कि शिक्षक मुझे मेरी उपलब्धि देंगे, ए रिबक एक ऐसी झिड़क, इट वॉज अनबियरेबल फॉर मी, अनबियरेबल मीन्स असहनीय, तो वह झिड़क मेरे लिए असहनीय होती थी। आई रिमेंबर्ड हैविंग वंस रिसीव्ड, आई रिमेंबर मुझे याद है, हैविंग वंस रिसीव्ड जब मुझे एक बार मिला या दिया गया, कॉर्पोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड, मुझे ये याद है जब एक बार मुझे शारीरिक दंड मिला। आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट, माइंड मतलब बुरा मानना,
मैंने उस दंड का अधिक बुरा नहीं माना। एज द फैक्ट, क्योंकि तथ्य ये था दैट इट वॉज कंसीडर माई डिफेक्ट, कि इसमें मेरी बुराई थी। आई वेप्ट पिटियसली, मैं दीनतापूर्वक रोया। दैट वॉज व्हेन, यह तब हुआ। आई वॉज इन द फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड, जब मैं प्रथम या द्वितीय कक्षा में था। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट, अनदर दूसरा, सच इंसिडेंट इसी प्रकार की इंसिडेंट घटना हुई। ड्यूरिंग द टाइम, उस समय, व्हेन जब, आई वॉज मैं था, इन द 7th स्टैंडर्ड 7वीं कक्षा में। तो गांधी जी कह रहे हैं कि जब मैं 7वीं कक्षा में था तो इसी प्रकार की एक घटना हुई। दोराबजी एडलजी जिमी वाज द हेड मास्टर देन, उस समय दोराबजी एडलजी जिमी मुख्य अध्यापक थे। ही वाज पॉपुलर एमंग बॉयज़, वह लड़कों के बीच बहुत ही प्रचलित थे। एज, क्योंकि ही वाज डिसिप्लिनेरियन, वह अनुशासन प्रिय थे। ए मैन ऑफ मेथड, एक विधि वाले व्यक्ति थे। एंड ए गुड टीचर, और एक अच्छे शिक्षक थे। ही हैड मेड, उन्होंने कर दिया या बना दिया, जिम्नास्टिक व्यायाम को, एंड क्रिकेट, और क्रिकेट को कंपलसरी आवश्यक, फॉर द बॉयज़ लड़कों के लिए, ऑफ द अपर स्टैंडर्ड्स उच्च कक्षाओं के, उन्होंने उच्च कक्षाओं के लड़कों के लिए शारीरिक व्यायाम और क्रिकेट को कंपलसरी बना दिया, आवश्यक बना दिया। आई डिसलाइक्ड बोथ, डिसलाइक्ड मतलब घृणा करना, नफरत करना। मुझे उन दोनों से घृणा थी, यानी क्रिकेट को भी मैं पसंद नहीं करता था और जिम्नास्टिक को भी। आई नेवर टुक पार्ट मीन्स हिस्सा लेना, इन एनी एक्सरसाइज, मैंने कभी भी किसी व्यायाम में, क्रिकेट में और फुटबॉल में हिस्सा नहीं लिया था। बिफोर देवर मेड कंपलसरी, उनके आवश्यक बनाए जाने से पूर्व। गांधी जी कह रहे हैं कि उनके यानी शारीरिक व्यायाम के और खेलों के आवश्यक बनाए जाने से पूर्व मैंने कभी भी किसी शारीरिक व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में हिस्सा नहीं लिया। माई शाइनेस मीन्स शर्मीलापन, वाज वन ऑफ द रीज़न, कारणों में से एक कारण था। फॉर दिस एलोफेंस, इस अलगाव का, मेरा शर्मीलापन इस अलगाव, उन कारणों में से एक कारण था, इस अलगाव से एक कारण था। मेरा शर्मीलापन इस अलगाव का एकमात्र कारण था। विच आई नाउ सी वाज रॉन्ग, जो अब मुझे गलत लगता है। आई देन हैड द फॉल्स नोशन, फॉल्स मीन्स गलत, नोशन मीन्स विचार, तरीका। आई देन हैड द फॉल्स नोशन, उस समय मुझे यह गलत विचार था दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन, कि व्यायाम का शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, या व्यायाम का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। टुडे, आज, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल मीन्स शारीरिक, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, शुड हैव एज मच प्लेस, उतना ही स्थान दिया जाना चाहिए, इन द क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम में, एज मेंटल ट्रेनिंग, जितना कि मानसिक प्रशिक्षण को। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द क्यूरिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग, आज मैं जानता हूँ, मैं जान गया हूँ कि पाठ्यक्रम में शारीरिक प्रशिक्षण को उतना ही स्थान दिया जाना चाहिए जितना कि मानसिक प्रशिक्षण को। आई मे मेंशन, गांधी जी कह रहे हैं कि आई मे मेंशन, मैं उल्लेख कर सकता हूँ, हाउएवर, फिर भी, दैट आई वाज नन द वर्स, कि मैं इतना भी बुरा नहीं था, फॉर अब्सटेनिंग, बचने के लिए, फ्रॉम एक्सरसाइज, व्यायाम से। मैं इस बात का उल्लेख कर सकता हूँ कि मैं व्यायाम से बचने के लिए इतना भी बुरा नहीं था। दैट वाज बिकॉज, यह इसलिए था, आई हैड रीड इन बुक्स, कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा था, अबाउट द बेनिफिट्स, लाभ के बारे में, ऑफ लॉन्ग वॉक्स, लंबी सैर के, इन द ओपन एयर, खुली हवा में। दैट वाज बिकॉज आई हैड रीड इन बुक्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग वॉक्स इन द ओपन एयर, या इस कारण से था क्योंकि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में लंबी सैर के लाभ के बारे में पढ़ा था। एंड हैविंग लाइक्ड द एडवाइस, और इस सलाह को मानते हुए, पसंद करते हुए, आई हैड फॉर्म्ड, मैंने बना ली थी, ए हैबिट, एक आदत, ऑफ टेकिंग वॉक, सैर करने की। मैंने सैर करने की आदत डाल ली थी।
विच हैड स्टिल रिमेन्ड विथ मी, जो कि आज भी मेरे साथ है। दीज वॉक्स गेव मी फेयरली हार्डी कॉन्स्टिट्यूशन। हार्डी मतलब हष्ट पुष्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स शारीरिक बनावट। इस सैर ने मुझे एक अच्छी हष्ट पुष्ट शारीरिक बनावट प्रदान की। द रीज़न फॉर माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक्स was my keen desire to serve as a nurse to my father. The reason for my dislike for gymnastic was my keen desire. Keen desire means तीव्र इच्छा, to serve सेवा करना, as nurse एक परिचारक के रूप में, to my father अपने पिता की। तो गांधी जी कह रहे हैं कि व्यायाम से मेरी नफरत का कारण था कि मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं अपने पिताजी की एक परिचारक बनकर सेवा करूं। एज सून एज, जैसे ही द स्कूल क्लोज्ड, विद्यालय बंद होता था, आई वुड हरी मीन्स जल्दी से, होम घर आ जाता था। जैसे ही विद्यालय बंद होता था मैं जल्दी से घर आ जाता था। एंड बेगिन सर्विंग हिम, और उनकी सेवा में लग जाता था। कंपल्सरी एक्सरसाइज, आवश्यक व्यायाम, केम डायरेक्टली, बाधा डाली या निर्विरोध आया, इन द वे मार्ग में, ऑफ दिस सर्विस इस सेवा के। आवश्यक व्यायाम निर्विरोध इस सेवा में आया, यानी इस मार्ग, सेवा के मार्ग में आवश्यक व्यायाम ने बाधा डाल दी। आई रिक्वेस्टेड मिस्टर जिम्मी टू एक्सेप्ट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक्स, मैंने मिस्टर जिम्मी से अनुरोध किया टू एक्सेप्ट मी, कि वे मुझे क्षमा कर दें, फ्रॉम जिम्नास्टिक शारीरिक व्यायाम में हिस्सा लेने से। मैंने मिस्टर जिम्मी से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया कि वह मुझे इस व्यायाम में हिस्सा लेने से क्षमा कर दें। सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माई फादर, ताकि मैं, आई माइट बी फ्री, मैं स्वतंत्र हो जाऊं अपने पिताजी की सेवा के लिए, ताकि मैं अपने पिताजी की सेवा करने के लिए स्वतंत्र हो जाऊं। बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। नाउ इट सो हैपेंड, अब ऐसा हुआ, दैट वन सैटरडे, की एक शनिवार, व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग, जब हमारा स्कूल सुबह में हुआ करता था, आई हैड टू गो फ्रॉम होम टू द स्कूल, मुझे फ्रॉम होम घर से, टू द स्कूल विद्यालय जाना पड़ता था, फॉर जिम्नास्टिक्स व्यायाम के लिए, एट 4 o'clock 4 बजे, इन द आफ्टरनून दोपहर के बाद यानी शाम को। अब ऐसा हुआ कि एक शनिवार जब हमारा विद्यालय सुबह को हुआ करता था, मुझे घर से विद्यालय व्यायाम के लिए शाम 4 बजे जाना पड़ता था। आई हैड नो वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं थी। एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी, और बादलों ने मुझे धोखा दे दिया, यानी उस समय घनेरे बादल छाए थे जिससे इन्हें समय का पता नहीं लगा। बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, इससे पहले कि मैं स्कूल पहुंचता, या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही, द बॉयज़ हैड ऑल लेफ्ट, सारे विद्यार्थी जा चुके थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिस्टर जिम्मी एग्जामिनिंग द रोल, मिस्टर जिम्मी रोल का यानी क्रम का परीक्षण करते हुए, फाउंड मी मार्क्ड एब्सेंट, मुझे अनुपस्थित पाया। बीइंग आस्क्ड द रीज़न, कारण पूछे जाने पर, फॉर एब्सेंस अनुपस्थित होने का कारण पूछे जाने पर, आई टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड, मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। ही रिफ्यूज्ड टू बिलीव मी, उन्होंने, रिफ्यूज्ड मीन्स इनकार कर दिया, टू बिलीव विश्वास करने पर, उन्होंने मुझ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, उन्होंने मुझ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। एंड ऑर्डर्ड मी, और मुझे आज्ञा दी, टू पे अदा करने के लिए, चुकाने के लिए, ए फाइन जुर्माना, ऑफ 1 or 2 आनाज, 1 या 2 आने का, आना जो कि सिक्का होता है पहले समय में चलता था। ही refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 आनास, उन्होंने मुझ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और मुझे 1 या 2 आने का जुर्माना अदा करने को कहा। आई कैन नॉट नाउ रिकॉल हाउ मच, गांधी जी कह रहे हैं कि अब मुझे याद नहीं है कि वह कितने थे, 1 आना थे कि 2 आना। आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, मुझे झूठा ठहराया गया। दैट डीपली पेंड मी, इससे मुझे बहुत गहरा दर्द हुआ। हाउ आई वॉज टू प्रूव, मैं कैसे सिद्ध करता, माई इनोसेंस, अपना निर्दोष, अपने आप को निर्दोष, मैं अपनी निर्दोषिता कैसे सिद्ध करता। दियर वाज नो वे, कोई रास्ता नहीं था।
आई क्राइड इन डीप एंग्विश, मैं बहुत गहरी वेदना में चिल्लाया या रोया। आई सॉ, मैंने देखा, दैट अ मैन ऑफ ट्रुथ, कि एक सत्यवादी व्यक्ति को मस्ट आल्सो भी होना चाहिए ए मैन ऑफ केयर, एक देखभाल वाला व्यक्ति। मैंने देखा कि एक सत्यवादी व्यक्ति को एक देख रेख वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस, यह पहला और अंतिम इंस्टेंस में उदाहरण था ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल, विद्यालय में मेरी लापरवाही का। यह मेरी विद्यालय में लापरवाही का पहला और अंतिम उदाहरण था। बट लेकिन, दो आई वॉज नन द वर्स, मैं इतना भी बुरा नहीं था। दो मीन्स यद्यपि, लेकिन यद्यपि मैं इतना भी बुरा नहीं था। फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज, कि मैं व्यायाम को नज़रअंदाज कर दूँ, अनदेखा कर दूँ। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन यद्यपि मैं व्यायाम को नज़रअंदाज करने के लिए इतना भी बुरा नहीं था, या मैं इतना भी बुरा नहीं था कि मैं व्यायाम को अनदेखा कर दूँ। आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी, मैं अब भी जुर्माना अदा कर रहा था। फॉर अनदर नेग्लेक्ट, दूसरी उपेक्षा के लिए, मैं अभी भी दूसरी उपेक्षा के लिए जुर्माना अदा कर रहा था। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेंस, कि कहाँ से, आई गॉट द नोशन, मुझे यह विचार मिला। मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ से मुझे यह विचार मिला। दैट गुड हैंड राइटिंग, कि अच्छी हस्तलेखनी वाज नॉट अ नेसेसरी पार्ट, आवश्यक हिस्सा नहीं होती है ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ से मुझे यह गलत विचार मिला कि अच्छी हैंड राइटिंग, यानी जो लिखने की कला होती है, जिसे हस्तलेखनी भी कहते हैं, कि अच्छी हस्तलेखनी शिक्षा का आवश्यक अंग या आवश्यक हिस्सा नहीं होती है। बट आई रिटेन्ड इट, लेकिन मैंने इसे तब तक रखा, यानी यह विचार मुझ में तब तक बना रहा, अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं गया। यानी इंग्लैंड जाने से पूर्व गांधी जी के मन में यह विचार बना रहा कि अच्छी हस्तलेखनी शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं है। व्हेन लेटर, जब बाद में, स्पेशली इन द साउथ अफ्रीका, खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका में, आई सॉ, मैंने देखा, द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मेन, वकीलों की और युवा व्यक्तियों की अच्छी सुंदर हस्तलेखनी को मैंने देखा। बॉर्न एंड एजुकेटेड, जो कि जन्मे थे और शिक्षित हुए थे इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में। तो गांधी जी कह रहे हैं कि और यह विचार मेरे साथ उस समय तक था जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं गया, जहां बाद में और ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका में मैंने वकीलों और युवा लोगों की सुंदर हस्तलेखनी को देखा, जो कि साउथ अफ्रीका में पले बढ़े और शिक्षित हुए थे। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। एंड रिपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट, और मुझे अपनी नेग्लेक्ट, उपेक्षा पर, और मुझे अपनी उपेक्षा पर रिपेंटेड, पश्चाताप हुआ, या मैंने अपनी उपेक्षा पर पश्चाताप किया। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड, कि खराब हस्तलेखनी को शुड बी रिगार्डेड, माना जाना चाहिए, ए साइन ऑफ, एक संकेत, इम्परफेक्ट एजुकेशन, अपूर्ण शिक्षा की। मैंने देखा कि एक खराब हस्तलेखनी को अपूर्ण शिक्षा का संकेत माना जाना चाहिए। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन, आई ट्राइड लेटर, लेटर मीन्स बाद में, इम्प्रूव मीन्स सुधारना, माइन स्वयं को, मैंने स्वयं को बाद में सुधारने, स्वयं को यानी स्वयं की हस्तलेखनी को मैंने बाद में स्वयं को सुधारने का प्रयास किया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ, मैंने नेवर रिपेयर, कभी मरम्मत ना कर सका, कभी बना ना सका, द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ, अपने जवानी की उपेक्षा को, यानी उस उपेक्षा को जो मैंने अपने युवावस्था में की थी, उसे मैं कभी उसको शुद्ध ना कर सका। तो आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ, मैं अपने युवा काल की उपेक्षा को कभी सुधार ना सका, उसकी कभी मरम्मत ना कर सका। लेट एवरी यंग मैन एंड वोमेन बी वार्न्ड, अब यहाँ सलाह दे रहे हैं कि लेट एवरी यंग मैन एंड वोमेन बी वार्न्ड, सभी युवा
पुरुष और महिलाओं को सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए बाय माई एग्जाम्पल, मेरे उदाहरण से। एंड अंडरस्टैंड दैट, और ये बात समझना चाहिए कि गुड हैंड राइटिंग इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि अच्छी हस्तलेखनी शिक्षा का एक आवश्यक अंग होती है। आई एम नाउ द ओपिनियन, अब मुझ में ये विचार है या मेरा यह विचार है दैट कि चिल्ड्रन शुड फर्स्ट बी टॉट, पहले बच्चों को सिखाया जाना चाहिए द आर्ट ऑफ ड्राइंग, कला बनाने की, यानी ड्राइंग मीन्स चित्रों को बनाने की, आर्ट मीन्स कला। अब मेरा यह विचार है कि बच्चों को पहले चित्रों को बनाने की कला सिखाया जाना चाहिए बिफोर लर्निंग, सीखने से पहले हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए। गांधी जी कह रहे हैं कि अब मेरा विचार है कि बच्चों को पढ़ना सीखने से पहले उन्हें वस्तुओं की कला को बनाना सिखाना चाहिए। लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर बाय ऑब्जर्वेशन, लेट द चाइल्ड रन, बच्चों को सीखने देना चाहिए हिज लेटर्स, अपने अक्षरों को बाय ऑब्जर्वेशन, देख कर बच्चों को सीखना चाहिए, बच्चों को अपने अक्षरों को देखकर सीखना चाहिए। एज ही डज, जो वह करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वस्तुओं को। तो कह रहे हैं कि बच्चों को अपने अक्षरों को अलग अलग वस्तुओं को बनाकर देखकर सीखने देना चाहिए, सच एज फ्लावर्स, बर्ड्स, etc, जैसे कि फूल, पक्षी आदि। एंड लेट हिम लर्न हैंड राइटिंग, और उन्हें हस्तलेखनी सीखने देना चाहिए ओनली आफ्टर, केवल तभी ही हैज़ लर्न टू ड्रा ऑब्जेक्ट्स, जब वह वस्तुओं का चित्रण करना सीख जाए, ड्रा मीन्स बनाना या चित्रण करना, और उसे हस्तलेखनी तभी सीखने देना चाहिए जब वह वस्तुओं का चित्रण करना सीख जाए। ही विल देन राइट, तब वह लिख पाएगा। अ ब्यूटीफुली फॉर्म्ड हैंड, अच्छी हस्तलेखनी में या सुंदर हस्तलेखनी में, तभी वह सुंदर हस्तलेखनी में लिख पाएगा। आई हैड लॉस्ट 1 ईयर, गांधी जी अपने बारे में कह रहे हैं कि आई हैड लॉस्ट, मैंने खो दिया 1 ईयर, 1 वर्ष, बिकॉज ऑफ माई मैरिज, अपनी शादी के कारण, मैंने अपनी शादी के कारण अपना 1 वर्ष खो दिया। एंड द टीचर वांटेड मी, और शिक्षक चाहते थे टू मेक गुड द लॉस बाय स्किपिंग ए क्लास, टू मेक गुड, कि मैं अपना अच्छा प्रयास करूं, द लॉस, उस हानि को अच्छा बनाने का प्रयास करूं, बाय स्किपिंग अ क्लास, एक कक्षा कूद कर। और शिक्षक मुझसे चाहते थे कि मैं एक कक्षा कूद कर अपनी हानि को अच्छा बनाने का प्रयास करूं। ए प्रिविलेज यूजुअली, ए प्रिविलेज, एक ऐसा महत्व, यूजुअली अलाउड, जो सामान्यतः दिया जाता है, टू इंडस्ट्रियस बॉयज़, मेहनती लड़कों को, एक ऐसा महत्व या एक ऐसा अवसर जो सामान्यतः मेहनती लड़कों को दिया जाता है। आई देयरफॉर हैड ओनली 6 months इन द 3rd स्टैंडर्ड, आई देयरफॉर, इसलिए मैं, हैड ओनली 6 months, केवल मैं 6 महीने ही रहा, इन द 3rd स्टैंडर्ड, 3री कक्षा में, और इसीलिए मैं 3री कक्षा में केवल 6 ही महीने पढ़ा। एंड वाज प्रमोटेड टू द 4th, और मेरा प्रमोशन कर दिया गया, मेरी पदोन्नति कर दी गई, टू द 4th क्लास आफ्टर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के बाद 4थी कक्षा में मेरी पदोन्नति कर दी गई। विच आर अलाउड बाय समर वैकेशन, जो कि गर्मी की छुट्टियों में हुआ था, यानी वह परीक्षा गर्मियों की छुट्टी में होने वाली परीक्षा के बाद मुझे 4थी कक्षा में पदोन्नत कर दिया गया। इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द मोस्ट सब्जेक्ट फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड, कह रहे हैं कि 4थी कक्षा से इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अंग्रेज़ी शिक्षा का माध्यम हो जाती है, इन द मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट, अधिकतर विषयों में। 4थी कक्षा में जाकर अंग्रेजी अधिकतर सभी विषयों में शिक्षा का माध्यम हो जाती है। आई फाउंड माई सेल्फ कम्प्लीटली एट सी, मैंने स्वयं को पूरी तरह से एट सी, हक्का बक्का पाया, यानी इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आई, मैंने स्वयं को पूरी तरह से हक्का बक्का पाया। ज्योमेट्री वाज अ न्यू सब्जेक्ट, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति वाज अ न्यू सब्जेक्ट, एक नया विषय थी। इन विच आई वाज नॉट पार्टिकुलरली स्ट्रांग, जिसमें मैं खास तौर पर मजबूत नहीं था। एंड द इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी,
और अंग्रेज़ी माध्यम ने इसे मेरे लिए और भी कठिन कर दिया। द टीचर टॉट द सब्जेक्ट वेरी वेल। शिक्षकों ने विषय बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए, बट आई कुड नॉट फॉलो हिम। लेकिन मैं उनका अनुसरण ना कर सका। ऑफन आई वुड लॉस हार्ट। अक्सर मैं निराश हो जाया करता था। एंड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू द थर्ड स्टैंडर्ड। और तीसरी कक्षा में जाने के बारे में विचार करता था। फीलिंग दैट, यह सोच करके कि पैकिंग ऑफ 2 years स्टडीज़, 2 वर्ष की पढ़ाई को पूरा करना इनटू अ सिंगल ईयर, एक ही वर्ष में, वाज टू एम्बिशियस, कितना महत्वाकांक्षी है। तो मैं यह सोचा करता था कि 2 वर्ष की पढ़ाई को 1 वर्ष में पूरा करना बहुत ही महत्वाकांक्षी है। बट दिस वुड डिस्क्रेडिटेड नॉट ओनली मी। लेकिन इससे, डिस्क्रेडिट मतलब बदनामी होना, नॉट ओनली मी, लेकिन इससे न केवल मेरी बदनामी होती, बट आल्सो द टीचर, बल्कि शिक्षक की भी होती। बिकॉज, क्योंकि काउंटिंग ऑन माई इंडस्ट्री, मेरी मेहनत को देखते हुए, ही हैड रिकमेंडेड, उन्होंने सिफारिश की थी, माई प्रमोशन, मेरी पदोन्नति की, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत को देख करके ही मेरी पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी। सो द फियर ऑफ द डबल डिस्क्रेडिट, इसलिए दोहरी बदनामी के डर ने, केप्ट मी एट माई पोस्ट, मुझे मेरी जगह पर बनाए रखा। इसलिए दोहरी बदनामी के डर ने मुझे मेरे स्थान पर बनाए रखा। वेन, जब, हाउएवर, फिर भी, विथ मच इफर्ट, बहुत अधिक प्रयासों से, आई रीच्ड द 13th प्रोपोजिशन ऑफ एक्लिड, जब मैं एक्लिड के 13th प्रीपोजिशन 13वें चरण पर पहुंचा। द अटर सिंप्लिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट, पूर्ण साधारणता ऑफ द सब्जेक्ट, उस विषय की पूर्ण साधारणता, वाज सडनली रिवील्ड टू मी, मेरे सामने उजागर हो गई या मुझे जानी पहचानी लगी। ए सब्जेक्ट विच ओनली रिक्वायर्ड अ प्योर एंड सिंपल यूज ऑफ वंस रीजनिंग पावर, ए सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय, विच ओनली रिक्वायर्ड, जिसे केवल आवश्यकता होती है, ए प्योर एंड सिंपल यूज़ ऑफ वंस रीजनिंग पावर, किसी के तर्क शक्ति का शुद्ध और साधारण प्रयोग की आवश्यकता होती है, कुड नॉट बी डिफ़िकल्ट, वह विषय कठिन नहीं हो सकता है। एवर सिंस दैट टाइम, उसी समय से, ज्योमेट्री हैज़ बीन बोथ ईजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी, ज्यामिति मेरे लिए सरल और रुचिकर दोनों लगने लगी। महात्मा गांधी इन हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। तो ये जो लेसन लिया गया है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा से लिया गया, जिसको टाइटल दिया गया है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ।